ریکارڈنگ دیکھنی ہے نا تو آپ لوگوں کو مل جائے گا، ٹھیک ہے. یہ کمپلیٹ میرا ایک وہ موجود ہے تو آپ لوگ لے سکتے ہو پھر کسی سے، ٹھیک ہے. ہے بندہ میں بھی وہ میگا کا لنک ہے تو وہ یا شیئر کر دے گا آپ لوگوں کے. اچھا وہ ابھی ان کو میں نے اس وجہ سے آپ کچھ کر لیں گے. چلو دن تکلیف ہے. یہ لو بس. ہاں اب یہاں پہ ایک سرور ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے آپ لوگوں کا 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ یہ پاور آف اور ویک 2T کو آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈراپ کرنا ہے، اور پھر اسی طرح سے یہاں سے آپ لوگوں نے یہ پاور آف کر دیتے ہیں اور یہاں سے بھی ویک 2T ڈراپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے، یہ دونوں راؤٹر آپس میں کنیکٹڈ، پھر یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہاں پہ یہ اور یہاں پہ ٹپالوجی بن گئی ہے. میں اس کو یہ ہے نا، ہاں میں اس کو سیو کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے کل کے لیے تو پھر ایکسٹینڈڈ ہیں، ٹھیک ہے شاید، اور ایکسٹینڈڈ کے نام سے میں اس کو سیو کر لیتا ہوں. یہاں پہ سیو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. کل میں پھر یہ ڈریگ اینڈ ڈراپ نہیں کروں گا، میں سیدھا یہاں پہ آ کے یہ ٹپالوجی آن کر کے یہ موجود ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ آئی پی کیا ہے، 192.168.50.4 اور یہ جو ہے یہ ہے ڈاٹ. اور یہاں پہ نا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ موبائل جو ہمارا گیٹ وے ہوگا وہ 50.1 ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ بعد میں بھی چینج نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں نے پھر کنفیگریشن کے ٹائم پہ کوئی اور آئی پی اسائن کی ہوگی، یہاں پہ گیٹ وے کوئی اور ہوگا، تو نہیں، گیٹ وے یہی ہونی چاہیے آپ لوگوں کی. اور یہ جو ہے یہاں پہ آ کے یہ ہو گیا ہے 5 اور یہ پھر سے ہو گیا ہے اور یہ پھر سے ہو گیا ہے 1، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ 6 کے لیے، تو یہ ہو گیا ہے اور یہ وہی 1 ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ اور یہ ہو گیا ہے 7، یہ ہو گیا ہے 1، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے آنا ہے راؤٹر 1 پہ اور یہاں سے ہم کنفیگریشن کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو وہی کام ہے کہ آپ لوگوں نے آئی پی ایڈریس کو اسائن کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہے انٹرفیس سیریل 0x0x0 اور آئی پی ایڈریس 1.1.1.1 255.0.0.0 اور نو شٹ ڈاؤن، ٹھیک ہو گیا. اب آپ لوگوں نے یہاں سے ایگزیکٹ پھر انٹرفیس FFA 0x0 اور آئی پی ایڈریس دفعہ کی بند کی یار، اور یہاں پہ ہے 192.168.50.1 255.255.255.0 اور نو شٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہوسٹ نیم کو میں رکھنے لگا ہوں کہ یہ ہے راؤٹر 1، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کر دیتے ہیں راؤٹر 2 پہ بھی کنفیگر. نو پکلا راؤٹر انیبل کنفیگر ٹرمینل اور ہوسٹ نیم راؤٹر 2 بس اور کہیں نہیں اس طرح نا پھر کہیں نا. اب انٹرفیس سیریل 0x0x0 اور آئی پی ایڈریس 1.1.1.1 255.0.0.0 1.1.1.2 اور نو شٹ ڈاؤن. پھر یہاں پہ انٹرفیس FFA 0x0 اور آئی پی ایڈریس
یہ ہو گیا ہے 192.168.100.1 اور 9 شٹ ڈاؤن. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ آنا ہے آپ لوگوں نے سرور پہ بھی, اور سرور پہ بھی آپ لوگوں نے اسی طرح سے آئی پی ایڈریسز کو اسائن کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آئی پی ہے 192.168 اور پھر 100.2 اور یہ ہے 100.1. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پہ جو ہے ابھی میں کرنے لگا ہوں کہ یہ ہو گیا ہے 3 اور یہ ہو گیا ہے 1. اچھا, بورڈ پہ جو موجود ہے, جو ڈھانچہ موجود ہے وہ یہاں پہ بھی ہم نے کریٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو میں نے آئی پی ایڈریسز کے ساتھ سیو کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کنفیگریشن کے ساتھ میں سیو نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ لوگوں نے یہاں سے اگر آپ لوگوں نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ میں یہاں پہ کمیونیکیٹ کروں؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ میں یہاں پہ کمیونیکیشن کروں؟ نہیں. ہمیں کیا چاہیے اب؟ راؤٹنگ پروٹوکول ہمیں چاہیے, یا ہم اسٹیٹک راؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں نے رپ اور او ایس پی ایف پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اور اسٹیٹک راؤٹ آپ لوگوں کی مرضی ہے, آپ لوگوں نے ان تینوں میتھڈز میں جون سا میتھڈ اپلائی کرنا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اگر میں کہوں کہ چلو جی میں نے او ایس پی ایف کو کنفیگر کرنا ہے تو یہاں پہ آتے ہیں, اور میں ذرا اگر دیکھ لوں, یہ لو جی شو آئی پی راؤٹ کر کے, تو راؤٹنگ ٹیبل میں 2 ہی نیٹ ورک ہیں, اور انہی 2 نیٹ ورک کو ہم نے کیا کرنا ہے, ایڈورٹائز کرنا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ کنفیگر ٹرمینل اور راؤٹر او ایس پی ایف 1 اور نیٹ ورک, یہی نیٹ ورک یہاں سے کاپی کر دوں. ٹھیک ہے, اگر لکھنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے تو یہاں پہ پیسٹ, اور 0.255 اور ایریا can be anything, لیکن must be same. Process ID can be same or process ID can be independent. وہ ایک دوسرے پہ انحصار نہیں رکھتی, لیکن ایریا ID must be same in single area OSPF. ابھی آپ لوگوں نے وہ کنسیپٹ نہیں پڑھا ہے جہاں پہ ایریا بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو ابھی کے لیے یہاں پہ آپ لوگ 0 نہیں, میں 10 کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھ لو ہو گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں آیا ہے مجھے. اور اس چیز کا پتہ ہے نا یہ کیا ہے, کس طرح کیلکولیٹ کیا ہوگا میں نے, کیونکہ یہاں پہ کمپلیٹ نیٹ ورک آئی ڈی ہے, اور کمپلیٹ نیٹ ورک آئی ڈی ہو تو لاسٹ آئی ڈی مائنس فرسٹ آئی ڈی کیا بنے گا, یہ والا وائلڈ کارڈ ماسک بنے گا. یا اگر سمپل میں کہوں تو براڈ کاسٹ آئی ڈی مائنس نیٹ ورک آئی ڈی از نون ایز وائلڈ کارڈ ماسک. ٹھیک ہے نا. اب دوسرا ہے نیٹ ورک 192.168.50.0.00255 اور ایریا 10. یہاں پہ بھی ہو گیا ہے. اب چلتے ہیں راؤٹر 2 کی طرف. تو راؤٹر 2 یہ والا ہے, اور یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ڈو شو آئی پی. اچھا, یہ میں نے کیا کیا ہے, ڈو کا میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر ہم کسی کمانڈ کو فورسفلی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم ڈو کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ صدر نہ وقت کی بچے ساری آنا لگیا زی ہمیں مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں پہ راؤٹر او ایس پی ایف, اچھا وہاں پہ 1 رکھا تھا میں نے, چلو میں نے یہاں پہ 5 رکھ دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور انیبل بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی میں نے کہا تھا کہ پروسیس آئی ڈی کین بی انڈیپینڈنٹ, ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, چاہے وہ سنگل ایریا او ایس پی ایف ہو, چاہے وہ ملٹی ایریا او ایس پی ایف. لیکن یہ تو آپ لوگوں کا ٹاپک ہے ہی نہیں, یہ تو ابھی باقی ہے. تو جون سا ٹاپک ہے وہ ہے ACL. ہم جلدی سے کنورجنس کرتے ہیں راؤٹنگ ٹیبلز کو کمپلیٹ. اور یہ لو جی یہاں پہ 0.255 اور ایریا 10 اور نیٹ ورک 192.168.0.00255 اور ایریا 10. یہ بھی ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو مسنگ نیٹ ورک ہے وہ موجود بھی ہے کہ نہیں.
तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल मौजूद होगा। ठीक है, आप लोगों ने मेहनत की है तो मौजूद होगा। ये लो जी मौजूद हैं 192 168 डॉट ये मौजूद है। अब एक दूसरा काम भी करना है आप लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो तो। वो काम क्या है साइमा? क्या? वही ना, मैंने कहा कि वो कौन सा काम है जो अभी बाकी है इस टपालॉजी में। बोर्ड से देख के बता दो मुझे, कोई बात नहीं, बोर्ड को देख लो सब कुछ हो गया है। आपका नाम अली है मेरे ख्याल से, ठीक है ना? तो जिनका नाम साइमा है पहले उनको मौका दो कि वो कहाँ पे है अभी। अच्छा देख लो ना मैंने क्या क्या किया है। आईपी एड्रेसेस असाइन है, ओएसपीएफ कन्वर्जन्स कंप्लीट है, बाकी क्या है आपके ख्याल में? अगर आपको वो टास्क समझाना याद हो तो आप मुझे जल्दी से बता सकते हो कि ये हमने वाइल्ड कार्ड मास। चलो जी हमजा आप बता दो इसमें क्या बाकी है। अच्छा ठीक है, सियाद बता दे, आप बता दो। चलो त्रोड़जिया तवाया। हाँ जी, नहीं उनको खुद ही नहीं पता, वो जो कह रहे हैं ना वो गलत है, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, अपने माइंड से कहो। टीसीपी आईपी, टीसीपी। अच्छा नहीं मुझे पता है, आपको भी पता नहीं है। देख लो अली ने भी गलत बोला है, ठीक है ना? अली ने भी जो कहा है वो गलत है, उसी पे भी नहीं जाओ ACL। अच्छा मुर्तज़ा जी आप बता दें। हाँ सर, अच्छा ब्लॉगिंग पे चलते हो आप लोग जल्दी से। अच्छा किस किस को पता है वो ज़रा हाथ ऊपर कर दें। हाँ जी हाँ, नहीं छोड़ दो, ये लवाए मैं पकड़ा। अच्छा आप बता दो। टेलनेट और SSH को हमने ब्लॉक करना है, और टेलनेट और SSH जो है वो TCP का ट्रैफिक है, हमने तो बनाया नहीं है, तो ब्लॉक कहाँ से करेंगे फिर? पहले हमने अभी सेम वो मैंने कहा ना कि टेलनेट और SSH को आप लोगों ने अलग अलग कॉन्फ़िगर किया था। आज आप लोगों ने सीखना कि एक गो में किस तरह से ये होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे चलते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर 1 से ही स्टार्ट लेते हैं। और आप लोगों को मैंने कहा था कि लेट्स से इस तरह से करना है आप लोगों ने कि IP डोमेन नेम corvette.com हो गया है आप लोगों का, ठीक है। फिर क्या था ज़रा, क्रिप्टो की, एक की को हमने जनरेट करना था, क्रिप्टो की जनरेट RSA के थ्रू। अच्छा की साइज़ आपसे पूछ रहा है, तो की साइज़ 1024 कुछ भी रख सकते हो आप लोग। और ये लो जी SSH का वर्जन 2 भी इनेबल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम क्रिएट करने लगा हूँ। यूज़र नेम मैंने रख दिया है admin1, और जो पासवर्ड होगा वो होगा सिस्को 1 ADMIN खास MP की, अच्छा MIN। चलो और एक और काम भी करना है, ये तो स्टार्ट से ही आप लोगों को करना चाहिए था कि एनेबल सीक्रेट, और ये हो गया है 1 2 3, ठीक है। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, लाइन VTY पे आना है आप लोगों ने, और 0 से लेके 5 तक, ठीक है। फिर आप लोगों ने प्रिविलेज लेवल वो एक्सेस देना है, तो 15 हो गया है। फिर क्या करना है आप लोगों ने, ट्रांसपोर्ट इनपुट। अच्छा मैं इनपुट को ना यहाँ पे मैं ये कर देता था पहले अपना नज़र, अगर मैं देख लूँ क्वेश्चन मार्क आल नज़र आ रहा है, दोनों से होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया है आल, अब टेलनेट भी होगा और SSH भी होगा, ठीक है। और फिर लॉगिन लॉग नहीं ये हो गया है, टेलनेट इनेबल हो गया है, ठीक है। टेलनेट में आप ये वाला कमांड देते हो, लॉगिन लोकल के लोकल डेटाबेस से आपने जाना है। ये ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट होता है वहाँ पे, ठीक है। या अगर हम ना भी लिख दें वहाँ पे कोई मसला नहीं है। और प्रिविलेज लेवल हम डिफ़ाइन करते हैं, और ये भी वहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप डिफ़ाइन करते हो तो करो, वरना कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ कि मुझे टेलनेट कर दो, मैंने कहा है टेलनेट 1.1.1.1, ये लो आ गया है। क्या था सिस्को, अच्छा सिस्को 1 नहीं है, एडमिन 1 सिस्को 1
एडमिन सिर्फ सिस्को, एडमिन 1 है और पासवर्ड सिर्फ सिस्को है। माथे पे रही यार, छोड़ दो। कहाँ पे है ये? पासवर्ड सिस्को 1 है यार, ठीक है। तो ये सिस्को 1 है अली राइट शाम। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये एग्जिट हो गया है और मैं इस पीसी से टेलनेट 1.1.1.1 यूज़र नेम है एडमिन 1, पासवर्ड सिस्को 1, ये लो हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, ठीक है, और SSH -L, ये -L का क्या मतलब है जी? कोई मुझे बता सकता है? हाँ क्या? नहीं, -L का मतलब क्या है? चलो अगर किसी ने ये आंसर मुझे ठीक दिया तो उसके लिए 500 रुपये इनाम है। हाँ नहीं कि मैंने यूज़र नेम के साथ ही लॉगिन होना है, ठीक है। और अब यहाँ पे है 1.1.1.1, ओहो, SSH -L एडमिन 1 और फिर 1.1.1.1, तो पासवर्ड क्या है? सिस्को 1 है। तो ये लो SSH भी हो गया। हाँ करेगा, ज़रूर करेगा, ठीक है, ट्राई करके देख लो, ठीक है। अब ये एग्जिट करो, ठीक है, और यहाँ पे आके देख लेते हैं ये राउटर 2 पे, और राउटर 2 पे हम वही सेम काम के इनेबल क्या सीक्रेट और 456 हैं, फिर है IP डोमेन नेम corvette.com, की जनरेट RSA, और ये लो 1024, और यहाँ पे यूज़र नेम हो गया होगा एडमिन 2, और यार पता नहीं मुझे क्या हो रहा है आज, और पासवर्ड नज़र को सनशम बोले, और सिस्को 2 हो गया है, ठीक है। फिर लाइन BTY 0 से 4, ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, प्रिविलेज लेवल 15 का होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है ये भी ऑप्शनल है, ठीक, कम करना है तो करो, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ही 15 होता है, ठीक है। और लॉगिन लोकल यहाँ पे भी हो गया है, ठीक है। हाँ भाई लोकल डेटाबेस से हाँ उठाना है आपने, ठीक है। अब अगर मैं करूँ पिंग 1.1.1.2, पिंग हो रहा है? बिल्कुल होगा। अगर मैं करूँ कि पिंग 192.100.100.2, ये नहीं हो रहा है, क्यों भला? क्या मसला है इसमें? हो सकता है मसला हमने क्या किया है, चलते हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या है अच्छा 192.168, और ये अब कम्युनिकेशन होने लगा है, ठीक है। ठीक है, अब ये लो हो गया है, ठीक है। अगर इसी तरह से जो पीसी है मैं उनको करूँ तो वो भी हो रहा है, टेलनेट SSH भी हो रहा है, आप लोगों को सब कुछ पता है, ठीक है ना। अच्छा मैं करूँ कि जी मुझे टेलनेट कर दो 1.1.1.2, ठीक है, और मैंने यूज़र नेम क्या रखा है एडमिन 2, और यहाँ पे करो एग्जिट, ठीक है। अब अच्छा क्या करना है हमने, अगर मैं वेब ब्राउज़र को एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ पे आप लोगों ने आना है, और जो IP है सर्वर की वो 192.168
100.2 इसको ज़रा देख लो। ये एक वेबसाइट बना है कि वेलकम टू, अच्छा सिस्को पैकेट ट्रेसर, वेलकम टू ये हर एक से यही सेम काम हो रहा होगा, ठीक है। जो इससे हो रहा है तो वो इन तीनों से भी हो रहा है। अब टास्क याद करो, टेलनेट को भी ब्लॉक करना है आप लोगों ने, पिंग को भी ब्लॉक करना है आप लोगों ने, वेब ब्राउज़र एक्सेस को भी ब्लॉक करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, ठीक है। और किसके थ्रू? स्टैंडर्ड एसीएल के थ्रू। अच्छा, 3 स्टेप्स को हमने डिफाइन किया था कल कि फर्स्ट डिफाइन, कॉन्फ़िगर या क्रिएशन ऑफ एसीएल इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मूड। तो वही करना है हमने, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मूड में आना है और स्टार्ट होती है कमांड की एक्सेस लिस्ट से ही। स्पेस क्वेश्चन मार्क करके नज़र आ रहा होगा कुछ ना कुछ तो ये है आप लोगों का स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड रेंज। मैं सेलेक्ट किया है 10, तो 10 आता है ना 1 से 99 के रेंज में, तो स्टैंडर्ड एसीएल डिफाइन हो गया है। अब आगे जो भी काम करना है वो स्टैंडर्ड एसीएल को ही प्रोसेस करेगा। और फिर से मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, तो आपको कहा है कि परमिट कर दो, डिनाई कर दो। रिमार्क के लिए थोड़ा वेट करो, ठीक है ना। परमिट और डिनाई क्या है? वही अलाउ और ब्लॉक करना। तो मैंने किसको ब्लॉक करना है? डिनाई को, सॉरी 192, 168, 50.4 को ब्लॉक करना है मैंने। सिंगल आईपी है ना, तो सिंगल आईपी के लिए मैंने क्या कहता है, ये फर्स्ट एड्रेस भी खुद है, लास्ट एड्रेस भी खुद है। तो हमारे साथ वाइल्ड कार्ड मास्क बनना था ये वाला, और यहाँ से स्पेस क्वेश्चन मार्क करके, तो कैरेज रिटर्न मतलब कमांड कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट है तो कंप्लीट है। अब इस लाइन को आप लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। नंबर्ड एसीएल में सिंगल आईपी को 2 तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ, जो दूसरा तरीका है वो है एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई के बाद ना ज़रा क्वेश्चन मार्क करके ये देख लो, ये क्या है कि वो एड्रेस लिख दो जिसके साथ आपने मैच करना है, ठीक है ना। ये इन्हीं का क्या मतलब है, कोई भी दुनिया में जितने भी एड्रेसेस है सारे के साथ हैं। और होस्ट क्या होता है? सिंगल होस्ट एड्रेस। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि होस्ट 192.168.4.0, अब स्पेस क्वेश्चन सॉरी 50.4 और ज़रा स्पेस क्वेश्चन मार्क कर दो। दोनों कमांड बिल्कुल सेम है, लेकिन एक में वाइल्ड कार्ड मास्क है, दूसरे में वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं है, क्योंकि आपने खुद डिफाइन किया है कि ये सिंगल है। और सिंगल के लिए हमने क्या कहा था कि 000 इज सिंगल। हाँ जी, कहा नहीं, ये नंबर्ड है, नंबर्ड है। अभी देख लो ना, यहाँ पे ये नंबर चल रहा है, ये नंबर ख़त्म होने वाला है अब। अच्छा, मैं इस लाइन को सेम टाइम पे तो आप लोगों ने एक ही अप्लाई करना होता है ना। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों ने ये करना है या ये वाला करना है, मर्ज़ी आप लोगों की है। तो मैं इस लाइन को कमेंट करने लगा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग जब प्रोग्रामिंग में कमेंट करते हो ये वाला साइन यूज़ होता है ना, यहाँ पे नेटवर्किंग में ये वाला एक्सक्लेमेशन, ठीक है। और स्टार्ट में होगा तो स्टार्ट में किस तरह से करना है आप लोगों ने, कंट्रोल ए करके मैं स्टार्ट पे आ गया हूँ या नहीं कर्सर, और यहाँ पे मैंने वही एक्सक्लेमेशन किया, ये हो गया है कमेंट। ये लाइन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे अब क्या करना है आप लोगों को पता है क्या हो गया है? एक तो डिनाई हो गया है। अच्छा, वैसे ना मैंने कल कहा एसीएल का मतलब ये है जैसे चौकीदार, ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे आप लोगों के लिए एक ऑथेंटिक यूज़र भी आ रहा है। चौकीदार को बाय डिफ़ॉल्ट पता लग रहा है कि ये इनका बाई है, इनको जाने दो। वो मुँह पे कहेगा मैं बाई हूँ, लेकिन हो गई नहीं, इजाज़त है ही नहीं मुझे, ठीक है ना। यही है ना कसंग सुहेला। तो डिफ़ॉल्ट राउटर पे भी एक लाइन यहाँ पे मौजूद है जो कि आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, और वो लाइन क्या है? एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई एनी, ये वाला लाइन यहाँ पे मौजूद है। हाँ क्या? हाँ, सब ब्लॉक है इस टाइम पे। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट डिनाई। ये क्या है? ये है इम्प्लिसिट डिनाई वाला लाइन जो कि डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है, और आप लोगों ने इसको ख़त्म करना है। और तो मैंने सबको अलाउ करना है ना, कि वो भी अलाउ होना चाहिए, वो भी अलाउ होना चाहिए, वो भी अलाउ। अब अगर मैं एक को डिफ़ाइन करूँगा तो कितने लाइन्स बनते हैं फिर ये?
3, तो मैं ये करता हूँ कि इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ एक्सेस लिस्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परमिट इन। अच्छा, इस लाइन को आप लोगों ने ये वाला लाइन भी लिख दिया है, एंटर कर दो, ठीक है जी, ये भी ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि पर एक्सेस लिस्ट 10 परमिट 000 255 255 255 255। ये लो जी, कि दुनिया में वो एड्रेसेस जिसकी रेंज स्टार्ट होती है यहाँ पे और ख़त्म होती है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे ख़त्म। तो ये एनी वाला लाइन और ये वाला लाइन बिल्कुल सेम है। तो आप लोगों को अगर ये वाला पसंद है ये वाला इम्प्लीमेंट कर दिया करो, ये वाला पसंद है तो ये वाला इम्प्लीमेंट कर दिया करो, या वो डिनाई रहेगा। देखते रहो क्या करना है हमने, ये सेम है, ठीक है ना। इम्प्लिसिट डिनाई, ठीक। ये वाला जो मैंने कहा था ना कि वो एक मौजूद होता है एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई एनी वाला, तो वो इम्प्लिसिट डिनाई हम कहते हैं उसको, ठीक है। अब ना इसको मैंने फिर से कमेंट करना है क्योंकि मैं एक ही लाइन से काम लूँगा हमेशा के लिए, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं जो तरीक़ों से है वो मैं इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ यहाँ पर। अब ACL को आप लोगों ने डिफ़ाइन किया है, फिर टाइम आता है इम्प्लीमेंटेशन का, और आप लोगों ने एक चीज़ पे अप्लाई करना है कि देख लो ये वाला जो यूज़र है, ये वाला जो यूज़र है इसकी ट्रैफिक यहाँ पे इस राउटर पे अलाउ है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से बाहर ये नहीं अलाउ। तो यहाँ से बाहर नहीं अलाउ ना, तो ये इंटरफेस पे आप लोगों ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है क्या। अच्छा, इसकी ये जो फ्लो है ये यहाँ तक महदूद रहे, इस राउटर तक महदूद रहे, लेकिन यहाँ से आउट मुझे नहीं चाहिए, आउट बाउंड नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो किस तरह से ये लाइन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, आप लोगों ने करना है इंटरफेस सीरियल 0x0 और IP एक्सेस ग्रुप, जो ग्रुप आप लोगों ने क्रिएट किया है ना, ऊपर जो पॉलिसीज़ आप लोगों ने लगाई है ना, उसको रिकॉल कर दो यहाँ पे, वो है 10, और ये क्वेश्चन मार्क करके देख लो, 2 डायरेक्शन है, या तो आउट में या तो इन पे। तो मैंने क्या करना है कि ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक हो गया है। अब कंप्लीट, मतलब आज आप लोगों ने 3 लाइन की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है बस, ठीक है ना। जो 20 मिनट की क्लास थी वो आप लोगों की ख़त्म हो गई, अब वेरिफिकेशन ही वेरिफिकेशन है बस, ठीक है ना। क्या ये 10, ये मैंने एक्सेस ग्रुप को कॉल किया है, ये वाला 10 है कि ये वाले 10 में जो मौजूद है वो इस इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें एक ये परमिट है, और इसमें एक ये है कि ये होस्ट डिनाई है, ठीक है। अब ये इंटरफेस यही काम करेगा फिर, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ एग्जैक्ट, और वेरिफिकेशन किस तरह से होती है, शो एक्सेस लिस्ट। ये लो, ये आप लोगों ने एक लाइन ऐड की है, ये लाइन ऐड की है आप लोगों ने ये। अच्छा, ये 10 तो ठीक है, आप लोगों को पता है, ये तो वही ग्रुप नंबर है। ये 10 और 20 क्या है, ये 10 और 20 जो है ये होते हैं हमारे साथ सीक्वेंस नंबर। और क्या मतलब है सीक्वेंस नंबर का, कि पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो आप मुझे बता दें, अभी जो आपने पूछा था कि अगर ये वाला लाइन पहले एग्जीक्यूट होता है तो ये तो डिनाई में ही चला गया है ना। मतलब जिस तरह की भी रिक्वेस्ट आती है पहले इसके साथ मैच होती है कि अगर वो ये IP है तो वो अलाउ नहीं है, मैच नहीं होती तो उनको इजाज़त है, ठीक है ना। अब आप लोगों ने तो ये काम किया है, ठीक है ना। किस बेस पे किया आप लोगों ने, स्टैंडर्ड ACL विद स्टैंडर्ड ACL बाय नंबर, नेम पे किस तरह से करोगे वो भी देख लो, फिर हम वेरिफिकेशन कर दें। अच्छा, अब ये जो जिनको अभी तक समझ नहीं आई है तो वो अभी आप लोगों की जो सी 10 मिनट की क्लास है वो अगर वो समझेगा तो ठीक है, सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर वो इस 10 मिनट्स को इस तरह से करेगा तो वो भी इसी तरह से ही रहेगा ही, ठीक है ना। तो देखते हैं वो 10 मिनट्स कितनी ज़रूरी है, अभी देख लो। ये हो गया है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, अगर नेम्ड ACL आप लोगों ने बनानी है तो स्टार्ट होती है IP से, IP एक्सेस लिस्ट स्पेस क्वेश्चन मार्क 2 क्या है, और वहाँ पे क्या था 1 से लेके 99 तक,
اور یہ اچھا آپ لوگوں نے نام سے کیا ہے کہ اسٹینڈرڈ ACL ہیں، اور یہ لو جی آپ لوگ ابھی نمبر بھی دے سکتے ہو اور آپ لوگ ابھی کوئی نام بھی دے سکتے ہو. تو اس ٹائم پہ میں نے نام دیا ہے عمر کا، اور عمر ہے کوئی؟ کون ہے؟ اچھا تو یہ لو جی ایک اسٹینڈرڈ ACL ڈیفائن ہو گیا ہے آپ لوگوں کا. اور یہ کون سا موڈ آ گیا ہے؟ کنفیگریشن اسٹوڈنٹ ACL ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ STD کا مطلب اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ ہے اسٹینڈرڈ. یہ جو NACL ہے اس کا مطلب ہے نیمڈ ACL. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہے آپ لوگ گلوبل کنفیگریشن کس موڈ میں؟ اسٹینڈرڈ وتھ نیمڈ ACL موڈ میں ہو آپ لوگ. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ تو بالکل سمپل کام ہے. اسپیس کوشچن مارک کر دو. یہ دیکھ لو ڈینائی بھی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، پرمٹ بھی نظر آ رہی ہے. اچھا یہ ریمارک کے لیے صبر کر دو تھوڑا سا. یہ نمبر کیا ہے اس کے لیے بھی تھوڑا سا، وہ جو میں نے کہا 10 منٹ کا ابھی وہ باقی ہے، میں نے اس سیکوینس نمبر پہ ہی کلاس لینی ہے پھر آگے. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ڈینائی کر دو ہوسٹ کو. کس ہوسٹ کو؟ 192.168.50.4 کو. اسپیس کوشچن مارک دو، کریکٹ یا کہ ریٹرن انٹر کر دو. اچھا اور بھی ایک طریقہ تو اور بھی ہے نا، وہ کون سا طریقہ تھا؟ کہ ڈینائی 192.168.50.4 اسپیس کوشچن مارک. اب نا وائلڈ کارڈ بٹس چاہیے کیونکہ آپ نے ڈیفائن ہی نہیں کیا ہے کہ یہ سنگل ہوسٹ ہے، رینج ہے، نیٹ ورک ID ہے، کیا ہے. تو اب میں بتانے لگا کہ یہ بائی جان سنگل ID ہے. اچھا اس کو بھی میں کمنٹ کرنے لگا ہوں کیونکہ ایک دفعہ میں نے ایک لائن کو ڈیفائن کیا ہے. اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پرمٹ ان. یہ لو کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ ایک کو ڈیفائن کرتے ہو ہمیشہ کے لیے. انٹرپرائز یا ریئل انوائرمنٹ میں یا تو نیمڈ ACL ڈیفائن کرو یا نمبرڈ ACL ڈیفائن کرو. اب آپ لوگوں نے کہا سر آپ نے پھر ہمیں 2 طریقوں سے کیوں سکھایا ہے؟ ٹھیک ہے تو یہ تو میری کمال ہے. ٹھیک ہے نا کہ آپ لوگ یہاں سے جاتے ہو تو کنفیوز ہو کے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ آپ انٹر کر دو، ہو گیا ہے. وہی پرمٹ 000-255-255 وہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہو. تو اگر میں پھر سے اس کو نا، اچھا اس کا امپیکٹ انٹرفیس پہ ہوگا بھی نہیں ہوگا. نیمڈ ACL کو میں نے انٹرفیس پہ ڈیفائن بھی نہیں کیا ہے ابھی. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر میں یہاں پہ کروں کہ شو ایکسیس لسٹ، یہ لو یہ ہو گیا ہے وہی نیمڈ والا ACL اور یہ ہو گیا ہے وہی نمبر والا ACL. ٹھیک ہے اب نا اس کو ذرا ویریفائی کرتے ہیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے. یہاں پہ میں نے یہاں سے کیا ہے، اچھا اس کو بند کر دو. یہاں پہ اگر میں کروں پنگ، یہ ہو رہا تھا نا سرور پہ یا PC پہ یا وٹ ایور جس مرضی کے کرو، یہ کیا رہا ہے اب انریچیبل ہے یہ. ٹھیک ہے اب اگر میں کروں کہ 3، اچھا پہلے تو یہ ویریفائی کرو پھر 3 پہ چلتے ہیں. کچھ تو نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو. یہ یہاں پہ کچھ ہے. اچھا وہ جو ریکویسٹ آیا تھا وہ اس کے ساتھ میچ ہو گیا ہے، نے آگے چھوڑا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اگر میں یہاں سے ایک اور PC پہ، یہ جو PC ہے اس پہ کروں تو یہ بھی ڈیسٹینیشن ہوسٹ انریچیبل ہے. اگر پھر میں یہاں سے کروں 1.1.1.2 پہ تو یہ بھی ریچیبل. اچھا یہ 4 اس میں ہے. ٹھیک ہے اور 4 پیکٹس اس میں ہے 8 اور یہ 4 12. اچھا 12 میچز کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ موجود ہے بھی کہ نہیں. یہ لو سرور کو ایکسس کرنا ہے کرو. چلو وہ ویب براؤزر کو کرنا ہے آپ لوگوں نے تو کرو ویب براؤزر کو. یہاں پہ آ کے یہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے 192.168 کیا 100.2. یہ لو انٹر کیا ہے. یہ لو گو گو گو، لیکن یہ گو ہی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگوں نے HTTP کے سروس کو بھی بلاک کیا ہے. TCP سروس دیکھنی ہے تو اب تو یقین آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے کس کس کو یقین نہیں ہے؟ یہ لو یہ ٹیلنیٹ کرو. ہاں ٹرائنگ، اب یہی کہے گا ریموٹ ہوسٹ ناٹ رسپونڈنگ.
सबक हौसला। ये किसी और ने भी पूछा है, मैंने कहा अच्छा किसने पूछा, वहाँ से कोई क्वेश्चन था, अभी आपने किया है, किसने किया ये हौसला हौसला, हाँ हर ये देख लो रिमोट होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। अच्छा ये ना सर्वर से आप लोगों को बड़ी जल्दी है, तो ये भी देख लो जी, ये लो मैं आ गया हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, और ये लो पिंग 1.1.1.1, तो मैंने उस बंदे को यहाँ से मेरे से अभी किसी ने पूछा कि सर सर्वर से, मैंने कहा सर्वर पे अगर आपने सर्वर से भी ब्लॉक कर दी है ट्रैफिक, तो वो इसी राउटर पे आप लोगों ने डिफाइन करना होगा, या इसी राउटर पे डिफाइन करना होगा आप लोगों ने कि यहाँ से जो सा ट्रैफिक ने आना है वो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर मैं यहाँ से करूँ, अगर मैं यहाँ से करूँ कि पिंग 192.168.50.4 हो रहा है, हो रहा है। अब इसको भी ज़रा वेरीफाई कर दो, ये किस लाइन के साथ मैच हो गया है, ये हो गया है इस लाइन के साथ मैच, जो आप लोगों ने क्या किया है, परमिट एनी किया है। अच्छा ये 105 तक पहुँच गया है बात, क्योंकि वो सर्वर से मैंने टेलनेट भी किया है, सर्वर को टेलनेट भी किया है, HTTP, तो हर एक के डिफरेंट पैकेट्स है फिर, ठीक है ना। तो ये हो गया है आप लोगों का वो वेरिफिकेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर मैं फिर से एक पिंग मारूँ तो ये PC वो है, अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी 8 पैकेट्स होने चाहिए थे कि ये यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, तो बस पैकेट ट्रेसर इशू है, आप लोगों के पैकेट ट्रेसर में हो सकता है। अभी जो सुबह के क्लास में मैंने पढ़ाया है उन लोगों के साथ है, वीडियो में मौजूद हैं, आप लोगों के वीडियो में मौजूद नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑर्डर आई है कि यार ये जो 192.168.100.4 जो है ना 50.7 इसको भी ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जज्बात में आके आप लोगों ने ये किया कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और 10, और फिर आप लोगों ने किया इसको डिनाई कर दो, क्या 192.168.50.7 और 000, जज्बात में आप लोगों ने कहा है जी काम हो गया है आपका, ठीक है। फिर आप लोगों ने उससे कहा अच्छा ठीक है देख लेते हैं, जब यहाँ से उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी तो कम्युनिकेशन फिर भी हो रही है, ठीक है। अब ये क्यों भला, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शो एक्सेस लिस्ट करके, ये देख लो ये वो तो यहाँ पे ही मैच हो के बात ही ख़त्म होती है, कि यहाँ तक तो बात ही नहीं आती। अब क्या करना होगा आप लोगों ने, दो तरीक़े हैं, ठीक है ना। एक बहुत ख़तरनाक तरीक़ा है, वो ये है कि आप लोगों ने ये किया कि शो रन, ठीक है, और शो रन के बाद आप लोग यहाँ पे आ गए हो, ठीक है। और आप लोगों ने ये किया है कि जी इसको कॉपी करके ये लो कॉपी, और यहाँ पे आप लोगों ने नोटपैड ओपन किया होगा, ठीक है। तो अकल भी चाहिए होती है ना लोगों को, ये आप लोगों ने कंट्रोल X किया है, यहाँ पे ये कर दो, चलो जी अब ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे आके जो ख़तरनाक काम है वो ये है कि नो एक्सेस लिस्ट सब कुछ उड़ाया है आप लोगों ने, ठीक है। तो अगर यकीन नहीं है तो डू शो एक्सेस लिस्ट, ये देख लो है कोई एक्सेस लिस्ट, या ये नेम्ड वाला है, नेम्ड वाला अगर आप लोगों ने उड़ाना है तो नेम के साथ, वो शो एक्सेस लिस्ट नहीं होगा, वो नो एक्सेस लिस्ट उमर ही होगा फिर, ठीक है ना। फिर ये आप लोगों ने किया है कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद आप लोगों ने
यहाँ से ये कॉपी करके इसकी सीक्वेंस आप लोगों ने खुद ठीक की है, और ये यहाँ पे फिर से आप लोगों ने क्या किया है, पेस्ट किया, इंटर। फिर आप लोगों ने वही आना है इंटरफेस सीरियल 0/0/0, ठीक है, और वही के IP एक्सेस ग्रुप क्या 10, और आउटसाइड पे ये ट्रैफिक नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इनसाइड पे भी कर सकते हैं। इनसाइड पे कब होगा, जब आप लोगों ने इस राउटर के साथ भी इन लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर देंगे, ठीक है। अब ना ज़रा वेरीफाई कर देते हैं कि इम्पेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट करके आप लोगों के सामने मौजूद है, ठीक है, कि फर्स्ट लाइन में ये है, सेकंड लाइन में ये आ गया है, और ये 30 हो गया है, ठीक है ना। अब क्या करना है आप लोगों ने, चलो अब देख लेते हैं। ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये बिल्कुल होगा। ये कौन सा वाला है, अच्छा मैंने खुद अपने आप को पिंग किया है फिर से, तो ये बिल्कुल होगा। फिर यहाँ से आना है आप लोगों ने, और यहाँ से आप लोगों ने पिंग करना है किसको, पिंग 192.168.100.2 या 1 कर दो, हाँ 1 भी ठीक है। ये तो मैंने ये किया है, ये जो कम्युनिकेशन हुआ है ना 50.4 का पता है किसका है, वो तो यहाँ पे है, ये स्विच, और स्विच से सीधा यहाँ। अब ना मैंने जाना है यहाँ से कि ये हो रहा है या नहीं, तो इनायत कोई चिन्ह बकीगी, अब देखते हैं कि क्या होगा। इनायत आप यहाँ पे फिर से रखो, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि ये किस तरह से हुआ है, लेकिन वो अगर 1000 लाइंस आप ACL हैं और आप लोगों ने ये शो रन करके उनको कॉपी किया है, फिर उसमें चेंजिंग करोगे, उनका सीक्वेंस नंबर ठीक करोगे, आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा लाइन कहाँ पे है, ठीक है ना। तो आप लोग ये, अगर मैं ये कहूँ कि यार हम इस तरह से क्यों नहीं करते कि ये जो सीक्वेंस नंबर है ना, ये इसको मैं कर, अच्छा अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ, कहाँ पे है वो दूसरा वाला PC कहाँ पे है, सर्वर को भी ये यहाँ से सर्वर पे अगर मैं पिंग करूँ तो होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो डिनाई है ना, ये तो पहले से डिनाई है, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं करूँ, यहाँ से फिर के पिंग करो जी 192.168.100.2 ये खैर होते हैं ये तो होगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो होता ही रहेगा हर दिन, ठीक है। ये अच्छा ये ना, ये ज़रा देख लो, ये वेब पैकेट ट्रेसर में ना बाज़ दफ़ा इशू आ ही जाती है, ठीक है ना। नहीं भाईजान सेम नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, मेरे कॉन्फ़िगरेशन में इतनी भी वो कोई मिस्टेक नहीं थी, वो जो मसला था ना वो सिमुलेशन का मसला, ठीक है। अच्छा 4 इसके साथ मैच हैं, 4 इसके साथ मैच है कि वो 4 को जाने नहीं दिया है 7 को, लेकिन 5 से करने के बाद ये 4 मैच हो गए हैं। अब 6 से करोगे तो वो भी इसके साथ ही मैच होगा, ठीक है। तो ये जो मैं लॉन्ग वे पे गया हूँ ना, ठीक है ना, तो ये मैं वो अली ने कहा सीक्वेंस नंबर, अली मैं इसको ठीक करने के लिए गया था कि ये ठीक हो जाए अब, ठीक है। अब ये मैं कह रहा हूँ यार, अगर ये 30 वाला ना, ये 30 वाला, या यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने एक और लाइन को भी ऐड करना है, यही 192.168.50.7 डिनाई, तो एक नेम्ड ACL है ना, एक नंबर ACL है, कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या मैं इसमें सीक्वेंस नंबर चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, क्या मैं इसमें सीक्वेंस नंबर चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया है कॉन्फ़िगर टर्मिनल एक्सेस लिस्ट क्वेश्चन मार्क, वही 10 स्पेस क्वेश्चन मार्क, वही डिनाई स्पेस क्वेश्चन मार्क, वही नेटवर्क मेरे से मांग रहा है 192.168 और 50.7 0. अच्छा ये ज़रा क्वेश्चन मार्क कर दो, सिर्फ एक ही ऑप्शन है वाइल्ड कार्ड बिट्स की स्पेस क्वेश्चन, यहाँ पे तो सीक्वेंस का मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नेम नंबर्ड ACL में आप लोग सीक्वेंस नंबर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं ये देख लूँ कि IP एक्सेस लिस्ट स्पेस क्वेश्चन मार्क स्टैंडर्ड है, बिल्कुल है, नाम चाहिए, नाम भी दिया है आप लोगों ने, एंटर करो, क्वेश्चन मार्क करके देख लो, ये
یہ کیا ہے آپ لوگ کر سکتے ہو. نیمڈ SQL میں آپ لوگ سیکوینس نمبر خود دے سکتے ہو. مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مرضی سے لائن اپ ایگزیکیوشن ہوگی. ٹھیک ہے نا. پھر آپ لوگوں نے کیا 15 D9 192 168. اچھا وہی ہوسٹ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہو یہاں پہ 192 168 اور کیا 50.7. اور یہاں پہ ویریفائی بھی کرو آپ لوگ ڈو شو ایکسیس لسٹ. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ 15واں جو لائن ہے یہ خود بخود یہاں پہ کاپی پیسٹ سے آپ لوگ بچ گئے ہو. ٹھیک ہے. تو کاپی پیسٹ سے بچنے کے لیے اگر آپ لوگوں نے جانا ہے تو کہاں پہ جانا ہے آپ لوگوں نے نیمڈ SQL پہ آپ لوگوں نے جانا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تو یہ پڑھ لیا ہے جی کہ سنگل IP کو کس طرح سے ہم ڈینائی کرتے ہیں. آپ لوگوں نے 50.4 کو بھی ڈینائی کیا ہے. آپ لوگوں نے 50.7 کو بھی ڈینائی کیا ہے. آپ لوگ کسی بھی ایک سنگل IP کو ڈینائی کر سکتے ہو. لیکن اگر ہمارے ساتھ جو یہ IP ایڈریسز ہے وہ ہے 50 تو پھر کیا کرنا ہوگا 50 لائنز آپ لوگوں نے لکھنی ہوگی. 4 کے لیے الگ 5 کے لیے الگ 6 کے لیے الگ 7 کے لیے الگ اور اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے ساتھ اگر ایک کمپلیٹ نیٹ ورک ہے تو کمپلیٹ نیٹ ورک کو آپ لوگوں نے اگر ڈینائی کرنا ہے تو کس طرح سے کمپلیٹ نیٹ ورک کے لیے وہی فارمولا ہے نا. میں نے بھی کہا ہے کہ براڈ کاسٹ ID مائنس نیٹ ورک اس سے جو بنے گا وہ آئے گا وائلڈ کارڈ ماسک. ایک تو یہ والا چیز اپنے مائنڈ میں رکھو. ٹھیک ہے نا. یہ والا چیز اپنے مائنڈ میں رکھ لو کہ براڈ کاسٹ ID سے نیٹ ورک ID کو ایگزور کرنے کے بعد جو بنتا ہے وہ ہوتا ہے وائلڈ کارڈ ماسک. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ ہمارے ساتھ ہے 192 168 32.0. اس کی براڈ کاسٹ ID آپ لوگوں کو معلوم ہے. ہاں براڈ کاسٹ ID یا براڈ کاسٹ ID اس کے لیے معلوم ہے. اس کے لیے ہے براڈ کاسٹ ID 192 168 32.255. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ یہ والا اٹھا کے اس سے ایگزار مطلب سبٹریکٹ کر دو. سبٹریکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آئے گا 0.0.0.255. یہ ہوگا ایک کمپلیٹ نیٹ ورک. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اس ٹائم پہ اگر ایک کمپلیٹ کلاس C کے لیے ایک نیٹ ورک ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے ڈینائی یا پرمٹ کر سکتے ہیں. کلاس B کے لیے پھر کیا ہوگا کلاس B کے لیے بھی ہے پھر یہاں پہ ہے 172.16.0.0. اس کے لیے وہی جب اس کے براڈ کاسٹ ID پہ 172 160.255.255 یہ فارمولا امپلیمنٹ کر دو. براڈ کاسٹ ID کو پہلے لکھ لو اور پھر سے ایگزور کر دو. کیا بنے گا 0.0.255. اچھا یہ میں آپ لوگوں کو وارم اپ کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ تو نہیں لکھ رہے ہو لیکن انشاءاللہ کب لگ جائے گا آپ لوگوں کو صرف نا ایکسٹینڈڈ سے اسٹارٹ ہونے. ٹھیک ہے نا. ایکسٹینڈڈ میں لگ جائے گا بس آپ لوگوں کا. یہ دا خبر اس کو نوٹ کر دا فصل فضول کی بس. ٹھیک ہے. اب جب ایک دوسرا بھی نیٹ ورک ہے 10.0.0.0 اس کے لیے پھر براڈ کاسٹ 10.255 اس سے بن جائے گا 0.255.2. یہ بن جائے گا کلاس A کے ایک پورے نیٹ ورک 127 نیٹ ورک ہے نا. 127 نیٹ ورک کو اگر آپ لوگوں نے الگ الگ کرنا ہے تو یہ. اچھا مجھے آپ لوگ یہ کر کے دکھاؤ گا کمپلیٹ کلاس A کو ڈینائی کرنا ہے. کمپلیٹ کلاس A کو ڈینائی کرنا ہے آپ لوگوں کو. چلو جی کر کے دکھاؤ.
कंप्लीट क्लास ए को एक्सरसाइज के एक्सरसाइज नेटवर्क्स को आप लोगों ने डिनाई क्या इसी से ये एक नेटवर्क डिनाई हो गया है। मुझे 11 भी डिनाई में चाहिए, मुझे 12 भी चाहिए, मुझे 2 भी चाहिए, मुझे 1 भी चाहिए, मुझे कंप्लीट चाहिए। यार टास्क को समझे, देख लो यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी तो मैंने आप लोगों को 10 मिनट का टाइम दो मुझे सिर्फ, और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अभी 8वां मिनट स्टार्ट है आप लोगों का, वो तो वैसे नहीं, देख लो आप लोग ना वो काउंट नहीं करो जो मैं एक एक चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से रिपीट करता हूँ, वो छोड़ दो। अभी 8वां मिनट तो अभी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आप लोग मुझे क्लास ए कितना से स्टार्ट होता है 127 तक, एक कंप्लीट मुझे डिनाई करके दो या कंप्लीट मुझे परमिट करके। ये तो मैंने सिर्फ 10 को किया है, क्या हो गया आप लोगों को? क्या ये क्या होगा? पूरे के पूरे क्लास ए के लिए होगा। कौन क्या? अच्छा, ये भी एक जबरदस्त चीज़ है। देख लो आपने एक लाइन ये लिख लिया है 10 के लिए, ठीक है। 11 के लिए भी लिख लो, 12 के लिए भी ये वाला लिख लो, मैं समझ गया 13 के लिए। इस तरह से ऐसा कह रही हो ना? हाँ, तो अगर इस तरह से नहीं वापस तो बिल्कुल गलत कह रही हो। तो इतना सारा कैसे लिखना? क्या? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना सारा हमने किस तरह से लिखना होगा। 127 लाइन्स बनते हैं, मुझे एक लाइन में सोल्यूशन दो। 255 भाईजान कहाँ पे पहुँच गए? हाँ वो लिख के दो ना, मैं तो यही कह रहा हूँ। क्या? चुप, आपने तो पढ़ा है, छोड़ दो। चलो क्लास बी के लिए करते दो। नहीं मैं कहूँगा नहीं, क्या हो गया? एक मिनट, क्या 0.0? अच्छा नहीं, आप ना पहुंच गए हो वैसे अपने वो एक हद तक पहुंच गए हो आप, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि कल अल्लाह के घर से कि आपको कल आसानी से समझ आएगी, ठीक है। 128 नहीं है, पहुंच गए हो। हाँ वो हाँ क्लास ए के साथ आपने क्लास बी को भी मर्ज किया। ये 255 पर कार्ड मार्क्स किस तरह से आ रहा है, मुझे ये जरा सर 0 को उसके साथ माइनस किया, किससे माइनस किया है आपने? ये नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी क्या है? 0.0.0 डिफॉल्ट है ना सर 2 लाइनों में। चलो एक ही लाइन में वो तो एक में, लेकिन ये क्या? अच्छा देख लो ऐसी वो क्या कहता है कि अच्छा वैसे ना माशाल्लाह 50 बंदे हैं ना इस क्लास में भी इस टाइम पे, 50 बंदे मार्फत के बंदे हैं वैसे, ठीक है ना? मार्फत ने भेजा नहीं? मार्फत जानती हो आप? तो अजीब उर्दू आपको आती है? मार्फत इमरान मार्फत पे आप मार्फत जानते हैं? हाँ पंजाबी में है, लेकिन आपको इतना तो समझ, मतलब मैं तारीफ कर रहा हूँ आप लोगों के बारे में कि मार्फत की क्लास है, ठीक है। चलो मारिफत हो गया है, हाँ अब ये समझ आ गया क्या होता है मारिफत, जरा मुझे बताओ क्या? हाँ जिसको चलो यार छोड़ मुझे ना जरा बताओ क्लास ए कहाँ से स्टार्ट होती है? 000 से, ठीक है। वो डिफॉल्ट राउट है वटेवर जो है, मैंने कहा कंप्लीट क्लास ए को डिनाई मुझे करना चाहिए, चाहे वो डिफॉल्ट राउट हो, चाहे वो जो लूप ब्रेक के लिए है या लोकल होस्ट के लिए है वो। अब मुझे सुनो मुझे सुनो जहरा बख्श है ना वक्त अब
اب نا تقبل کوشچن خیر ریاض ساتا ہے کوشچن دی ریاض ساتا ادھر ڈسکس ہاں ہاں اچھا اچھا ہاں چلو کرو سوچ آیا ہے آپ کے ذہن میں تو بتا دو نہیں نہیں کرو کرو اچھا ہاں کہو اتنا نہیں سوچنا ہے کہو نہیں 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 کہو سر ہم یہ پرمٹ یا ڈیزائن والا اسٹیپ نہیں لکھے کیا پرمٹ نہیں آتا سر ڈیزائن والا اسٹیپ نہیں سر ڈیزائن کسی وائٹ کارڈ کیا وائٹ کارڈ مس کیا مطلب ڈیزائن کو نہیں آپ لوگ نا میں دماغ پہ پریشر ہوں ٹھیک ہے کیونکہ کل بھی آپ لوگوں نے آنا ہے یہ تو ویسے ہی وارم اپ کا میں نے کہا ہے ٹھیک ہے دیکھ لو یہ اسٹارٹ ہوتا ہے کلاس اے یہاں سے 0 0 0 اختتام کہاں پہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 127 255 255 اس کو اٹھا کے یہاں پہ کر دو یہ یہاں پہ کر دو کیا بنے گا کیا بنے گا وائٹ کارڈ ماسک بنے گا تو کس طرح سے ہوگا کہ 127 ڈاٹ 255 ڈاٹ 255 اچھا ویسے نا اس کو میں نے مائنس کیا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ موجود ہے 0 0 0 0 اس کو نہ کر کے نا یہ وائٹ کارڈ ماسک میں آپ لوگ لکھ کے نا دیکھ لو سارا کا سارا کلاس ہے آپ لوگوں نے ڈینائی کیا ہے 127 نیٹ ورکس کو ایک ہی لائن یا تو پرمٹ کیا ہوگا یا ڈینائی چلو کلاس بی کے لیے مجھے کر کے دو اب تو اب نہ آپ دیکھ لو امین جذبات سے کام لے رہا ہے اور یہ جذبات ہی مارے گا اس کو ہاں جی کہو لکھ لو کیا ایک منٹ سہیلا سہیلا دا ڈیفالٹ راؤٹ نہیں ہے 0 0 0 0 127 روپے کی 0 لکھے پڑے چلو اس سے بھی مائنس کر کے وہی آئے گا اس میں دو کیا ہاں ہاں کہاں پہ